Students, in previous lecture we have studied how to find the complement set or what is a complement set. If universal set is given and any set is given, then how to find the complement set. So definition of the complement set you all studied in earlier classes, in earlier lectures. The set of all those elements, the set of all those elements of a universal set U which are not in the given set is called the complement set of the given set. तो स्टूडेंट्स complement set, अगर हमें कोई सेट A गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इट मीन्स U माइनस A, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ set U which is not belongs to A means U minus A. So student, exercise 1.5 question number 1, U is given, A, B, C is given, then find A complement, B complement and so on. So first one, A complement. A complement, students, A complements, it means U minus A, all those element of which is does not belongs to A. So U is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and A is given 1, 2, 3 and 4. So all element of set U which does not belongs to in A. A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो U में उसको निकाल दो, तो 1, 2, 3 and 4. It means A complement equal to 5, 6, 7, 8 and 9. This is the answer of the first one. Then second one, complement of B, U minus B. U में से B वाले एलिमेंट को माइनस कर दो. U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minus 2, 4, 6 and 8. B को माइनस करेंगे तो B के जो एलिमेंट इसमें है स्टूडेंट्स 2, 4, 6 and 8, ये सभी एलिमेंट्स निकाल देंगे U में से. तो all those elements of U which are not in B, that is B complement. So B complement equal to 1, 3, 5, 7 and 9. Then student, third one, A union C, complement of A union C. So first of all try to find A union C. A union C equal to A. A student 1, 2, 3, 4. Union C. Union C student 3, 4, 5 and 6. So A union C equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Therefore, complement of A union C, it means student U minus A union C. So U minus A union C, U it means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is U and minus A union C. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So students, A union C complement equal to 7, 8 and 9. तो ये हो गया स्टूडेंट आंसर. Then fourth one students, question number fourth one. Question number 1 in fourth one, A, first of all find A union B. Firstly
B. Find A union B. A union B, student, it means A. 1 2 3 4, 1 2 3 4, union B 2 4 6 8. So A union B equal to 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 and 8. Therefore A union B complement equal to U minus A union B. Student, U 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus A union B 1 2 3 4 6 and 8. 1 2 3 4 6 and 8. It means 5 7 and 9. Therefore A complement of A union B equal to 5 7 and 9. This is the answer. Next question, student, fifth one. So fifth one, students, question number fifth one is this: complement of A, then complement. So A complement equal to U minus A. फर्स्ट में हमने फाइंड कर लिया था स्टूडेंट A complement, तो A complement आया हुआ था 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9. Then students, A complement of the complement, it means U minus A complement. It means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus 5 6 7 8 9. So 5 6 7 8 9. A complement of complement equal to 1 2 3 and 4. It means A complement of complement equal to A. तो स्टूडेंट ये फार्मूला भी होता है, अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो इटसेल्फ वही सेट आ जाता है. तो अगर दोबारा फाइंड करें तो वही सेट आ जाता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे सिक्स्थ वन स्टूडेंट, ये फिफ्थ वन था. दिस इज द फिफ्थ वन. First of all, find A dash, then A complement of complement equal to itself A. Then sixth one, B minus C complement, complement of B minus C. Sixth one, student, first of all find B minus C. It means B 2 4 6 8 and C 3 4 5 6. So 4 and 6, 4 and 6 निकल गया स्टूडेंट. B minus C equal to 2 and 8. Therefore complement of B minus C equal to U minus B minus C. तो U क्या है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 minus B minus C 2 and 8. तो स्टूडेंट 2 and 8. Therefore 1 3 4 5 6 7 and 9. This is the B minus C complement. तो ये आंसर हुआ स्टूडेंट सिक्स्थ वन. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, A is given
फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ए गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना स्टूडेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए, इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए बी सी। तो ए बी सी निकल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डी ई एफ जी एच। देन स्टूडेंट सेकंड वन, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। सो यू ए बी complement equal to A B C D E F G H minus B D E F G D E F G. So B complement equal to A B C H. Then students, third one, C complement equal to U minus C. So student, U A B C D E F G H minus C. C student, A C E G, A C E G, A C E G, A C E G. So C complement equal to B D F H. Then fourth one student, D complement equal to U minus D. तो U में से D को माइनस करेंगे, F G H A माइनस कर देंगे। तो D complement equal to A B C D E F G H minus D F G H A, F G H A, F G H and A. Therefore D complement equal to B C D and E. So I hope you all are getting it very well. If any doubt, then comment in comment section. Those who are watching, please like, share and subscribe. Student, question number 3, complement of the following sets. तो ये given है student, x is an even natural number. Even natural number students, it means a equal to given है 2 4 6 8. Then a complement equal to u minus a equal to क्या आ जाएगा स्टूडेंट? u क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, टोटल नेचुरल नंबर का सेट है। तो टोटल नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 3 5 7 एंड डैश डैश डैश। इट मीन्स a complement is the set of the odd natural number. So a complement equal to set of the odd natural numbers. तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा a complement equal to x such that x is an odd natural numbers. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर इसका। देन सेकंड वन स्टूडेंट, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इसको सेट b सपोज कर ले स्टूडेंट, सो b इक्वल टू ऑड 1 3 5 7 डैश डैश एंड u क्या है स्टूडेंट? अब b कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो u माइनस b होगा स्टूडेंट। u set of the natural numbers, taking set of the natural number as universal set, तो हम 1 2 3 4 5 6
इसमें माइनस करने वाले हैं 1 3 5 7, तो स्टूडेंट आ जाएगा 2 4 6 8 समथिंग। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज द x such that x is an even natural number, even natural numbers। तो स्टूडेंट्स, जब हम इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ऑड नेचुरल नंबर आएगा, ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इवन नेचुरल नंबर आएगा, बिकॉज इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर को मिला करके टोटल नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। देन थर्ड वन, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इट मींस स्टूडेंट अगर लेट c इक्वल टू 3 6 9 and u equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 something, so c कॉम्प्लीमेंट u माइनस c जब करेंगे स्टूडेंट्स तो जितने भी 3 के मल्टीपल नंबर्स हैं 3 निकल जाएगा, इसमें से 6 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा। इट मींस c कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस c where x such that x is positive number not multiple of 3, not multiple of 3। तो यहां पर मल्टीपल ऑफ 3 होगा स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट में नॉट मल्टीपल आ जाएगा। ऐसे फोर्थ वन प्राइम नंबर का सेट है स्टूडेंट्स, फोर्थ वन प्राइम नंबर्स है, तो लेट इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। लेट d इक्वल टू 2 3 4 2 3 5 7 11 समथिंग एंड u इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ऑल। देन d कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस डी, u माइनस डी करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, u माइनस डी करने पर 1, ये सभी नंबर्स 2 3 5 7 11 निकल जाएंगे, सभी प्राइम नंबर्स निकल जाएंगे, तो आएगा 1 के बाद 2 3 निकल जाएगा 4 5 निकल जाएगा 6 7 निकल जाएगा 8। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा d कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कंपोजिट नंबर x such that x is composite number with 1। सभी कंपोजिट नंबर आएंगे स्टूडेंट और 1 भी आएगा उसके साथ। देन फिफ्थ वन स्टूडेंट, फिफ्थ वन x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। इसको हमने सपोज कर लिया लेट e कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x such that x is a natural number, x is natural number not divisible by natural number, not divisible by 3 and 5। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फिफ्थ वन। देन सिक्स्थ वन स्टूडेंट्स, सिक्स्थ वन इसका कॉम्प्लीमेंट e का हम अगर f कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लें तो f कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टूडेंट्स u में परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर को माइनस कर देंगे क्या आएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेवंथ वन स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 7th one. Question number 7th one, students. 7th one. Question number 7th one. X such that X is a perfect cube. X is perfect cube. तो स्टूडेंट जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में नॉट अ परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि नेचुरल नंबर में परफेक्ट क्यूब और नॉट अ परफेक्ट क्यूब दोनों नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 8th one, x such that x plus 5 equal to 8। इट मीन्स हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इक्वल टू 8 माइनस 5, x इक्वल टू 3। इट मीन्स x such that x equal to 3, therefore complement of that set x such that x not equal to 3। तो ये इसका स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x not equal to 3। देन नेक्स्ट 9th one स्टूडेंट्स, 9th one हो जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th one, x इक्वल टू x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। x 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 5 माइनस 9, सॉरी 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। इट मीन्स स्टूडेंट x इक्वल टू 2, देयरफॉर x complement equal to u minus x equal to x such that x belongs to natural number and x not equal to 2। इस सेट में स्टूडेंट x इक्वल टू 2 है तो x नॉट इक्वल टू 2 सभी नेचुरल नंबर्स होंगे x इक्वल टू 2 को छोड़ करके। नेक्स्ट स्टूडेंट 10th one, y इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ 7, 8, 9 एंड ऑल। देयरफॉर y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस y इक्वल टू 7 से सब नेचुरल नंबर्स इसमें आए हुए हैं। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में y कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x सच दैट x लेस देन 7। देन स्टूडेंट 11th one, क्वेश्चन नंबर 3, 11th one, set z equal to x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10, 2x plus 1 greater than 10। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट
2x plus 1 equal to 10, 2x equal to 9, x equal to 9 by 2, x equal to 4.5 means x greater than 4.5. तो स्टूडेंट हो जाएगा ग्रेटर देन 4.5, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ z इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4.5, x less than or equal, 2x plus 1 लेस देन आर इक्वल टू 10. यहां से हम फाइंड करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 4, 5 ग्रेटर देन 4.5, 5, 6, 7 समथिंग. तो z कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4. तो उसको हम इस तरह से लिख देंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4th वन, u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and a 2, 4, 6, 8, b 2, 3, 5, 7. Then verify this first one. So first of all find a complement, b complement, then a union b complement. So left side a union b. First of all find a union b. A 2, 4, 6, 8 and union b 2, 3, 5, 7. Therefore a union b equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then left side a union b complement. कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट, तो u माइनस कर देते हैं, u माइनस a यूनियन b. तो u हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस a यूनियन b 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So a union b of complement equal to 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 means 1 and 9. This is the equation 1. Then अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट a complement and b complement. a complement इक्वल टू u माइनस a, u में से a को माइनस कर देंगे, 2, 4, 6, 8 माइनस कर देंगे, 2, 4, 6, 8. तो आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9. देन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. b कॉम्प्लीमेंट b 2, 3, 5, 7 है तो u माइनस b कर देंगे, तो 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 1, 4, 5 निकल जाएगा, 6, 7 निकल जाएगा, 8 एंड 9. देन स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे राइट साइड a complement intersection b complement. So a complement student 1, 3, 5, 7, 9 and intersection b complement 1, 4, 6, 8, 9. तो स्टूडेंट इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना था 1 and 9, 1 and 9. तो ये आया a complement intersection b complement equal to 1 and 9. इक्वेशन नंबर 2. स्टूडेंट ये देखिए इक्वेशन 1 and 2. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say a union b of complement equal to a complement intersection b complement.
हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पहले ए यूनियन बी लेफ्ट साइड फाइंड किया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए यूनियन बी, क्वेश्चन नंबर 1। देन हमने फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, देन राइट साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, इसके बाद हमने ये किया स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड, ये आंसर हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देन इसी तरह से हम सेकंड वन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट वन समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट सेकंड वन स्टूडेंट्स, सेकंड वन सेकंड वन स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड वन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 इंटरसेक्शन 2 3 5 7। सो स्टूडेंट इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होगा 2, देन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट साइड फाइंड करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट साइड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minus a intersection b 2. So we will get a intersection b complement equal to 1 3 4 5 6 7 8 and 9, इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट। देन हम a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे फर्स्ट वन में, यह a कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a, u माइनस a हमने किया था तो 1 3 5 7 एंड 9। देन b कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट, b कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया u माइनस b, u माइनस b करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 4 6 8 एंड 9। तो देन स्टूडेंट्स राइट साइड लेंगे हम, राइट साइड a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 एंड b कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, यूनियन कर लो। देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 8 and 9 from equation 2. So student, from equation first and second we can say, ये दोनों देखो इक्वेशन सेकंड में जो वैल्यू आई वही इक्वेशन फर्स्ट में आई। वी कैन से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसी को हम डिमॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमने इसमें प्रूव किया स्टूडेंट, दैट इज आल्सो नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th वन, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम हमें बनाना है स्टूडेंट्स। ये देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा u माइनस ए यूनियन बी। तो u माइनस ए यूनियन बी स्टूडेंट, ये देखो जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं यूनियन के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए हमने क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया।
रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दो, तो ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ये देखिए स्टूडेंट हुआ ए यूनियन बी, इसको माइनस कर देना है स्टूडेंट। ए यूनियन बी को माइनस करना है। हमें पता है कि ए यूनियन बी होता है इस तरह से, ये यू है तो ये ए यूनियन बी होता है स्टूडेंट्स। ये होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, इसी को यू में से माइनस करना है स्टूडेंट, तो इसको माइनस करना है, मतलब कि इसी को ये यूनियन बी, ये टोटल सर्कल है, इसको निकाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा, जो शेडेड एरिया बचेगी वही हो जाएगा हमारा यही हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाता है स्टूडेंट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को यू में से माइनस करेंगे, मतलब इसी को माइनस कर देंगे, तो इसको हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स। ये हमने समझने के लिए बनाया है ए यूनियन बी, बट आंसर ये हो जाएगा वेन डायग्राम इसका स्टूडेंट्स। ये तो समझने के लिए है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी हमने क्यों बनाया, यू में से इसी को माइनस करना है। यू में से इसको माइनस करना मतलब इसी को यहां से हमने निकाल दिया। नेक्स्ट सेकंड वन स्टूडेंट, ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करें तो क्या हो जाता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट जो हमने यहां बनाया हुआ है सेम वही यहां भी होगा, बाई डी मॉर्गन्स लॉ, बाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो यह भी वही हो जाएगा स्टूडेंट, सेम है ये दोनों। ये देखो u और ये हुआ a एंड b, ये a है स्टूडेंट, ये b है, तो ये a और ये b, और रिमेनिंग पार्ट्स जो आया वही क्या हो जाएगा, दोनों का मतलब सेम ही होता है स्टूडेंट्स। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A यूनियन B होल द कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन्स लॉ ही होता है स्टूडेंट। ये देखिए थर्ड वन में हमें क्या करना है स्टूडेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इट मींस U माइनस A इंटरसेक्शन B। तो U में से A माइनस B को माइनस कर देंगे स्टूडेंट। ये देखिए ये हुआ U और A माइनस A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते तो इंटरसेक्शन ये होता है, इसी को माइनस कर देना है इसमें से, ये इतने को माइनस कर देना, बाकी सबको ये जितने भी पार्ट्स हैं सबको ले लेना, ये माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, A और B स्टूडेंट्स। तो ये होता है A इंटरसेक्शन B, इसी को निकाल देना है U में से। तो स्टूडेंट्स हो जाएगा तो हमने U में से क्या किया स्टूडेंट, A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दिया। अब ये तो A इंटरसेक्शन B था स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B हमने यहां बनाया हुआ था। ये है A इंटरसेक्शन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B, इसी को हमने माइनस कर दिया U में से। तो ये इतना निकल गया, बाकी सब पोर्शन आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट,
यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये स्टूडेंट देखो, ये डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी ही वैल्यू वही होती है। तो ये भी अगर हम बनाएंगे तो सेम वही थर्ड वाला, तो ये ए और ये बी, ये ए और ये बी और ये यू, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सेम वही होने वाला है। ये ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, ये पोर्शन निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यही हो जाएगा। चाहे इसको ये कह सकते हो, अदरवाइज ए भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। तो वेन डायग्राम बताते समय हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था कि ये हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो ये यूनियन होता है, इसी को यू में से निकाल दिया हमने, ये आ गया। इसका मतलब भी वही है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, इसका मतलब भी वही है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी वही है डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट ये हो जाता है वेन डायग्राम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 वन, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। दिया है यूनिवर्सल सेट, प्लेन में सब टाइप के ट्रायंगल्स हैं। If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60, what is the complement of A? Students given है set A at least one angle 60 से different होना चाहिए, at least one angle different from 60. It means student ये हुआ कि set A में सभी एंगल 60 वाले नहीं है ट्रायंगल, जिसके सभी एंगल 60 हैं ऐसे ट्रायंगल सेट ए में नहीं है स्टूडेंट्स। तो इट मींस सेट ए में कौन से ट्रायंगल्स नहीं हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं हैं। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि जिसके सभी एंगल 60 डिग्री हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, students according to question, A is the set of triangles in which no triangle in equilateral. A is the set of triangle in which no triangle is equilateral. Set A में कोई भी equilateral triangle नहीं है student. Therefore A complement equal to U minus A equal to हो जाएगा student the set of all equilateral triangles is the set of all equilateral triangles। तो स्टूडेंट ए क्या है, ए में एक भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल इन विच नो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बचे हैं, u माइनस ए करेंगे तो ए में जितने भी टाइप के ट्रायंगल थे सब आ गए, कौन सा नहीं आया, इक्विलेटरल नहीं आया। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया इसका। आई होप यू ऑल आर गेटिंग वेरी वेल। इफ एनी कंफ्यूजन देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। दोज हु आर वाचिंग द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Students, question number 7th one. Fill in the blanks to make each of the following a true statements. So,
ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट और कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट्स। कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ऑलवेज यूनिवर्सल सेट होता है। देन फाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई इक्वल टू यू, तो यू इंटरसेक्शन ए, यू इंटरसेक्शन ए जब करेंगे स्टूडेंट, यू और ए में ए कॉमन होता है, इट मींस फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। यू इंटरसेक्शन ए में क्या आएगा, ए आ जाएगा स्टूडेंट, इक्वल टू ए। ये सोल्यूशन हुआ, तो इसका आंसर ये हो गया स्टूडेंट। थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो दिस इज इक्वल टू 5। एंड यू कॉम्प्लीमेंट आया स्टूडेंट्स, यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5, तो 5 इंटरसेक्शन ए जब फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 5 और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहां पर आया स्टूडेंट 5, और यहां पर आया स्टूडेंट ए, यहां पर आया 5, यहां पर आया यू, यू ए 5 एंड 5। आंसर हुआ स्टूडेंट यू ए 5 एंड 5। तो ये सॉल्यूशन के साथ आंसर होगा स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। दैट्स ऑल।